ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गुड इवनिंग अंशु जी, गुड इवनिंग। गगन कौर है उनकी, अनम्यूट करता हूँ। Gagan Kaur. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Just my question Good is morning. related with the I am in New York here, and I've been part of your knowledge from since you guys started. So humbly thankful to all my mentors for this wonderful journey, first of all. And second is that the more I am part of you, the more I think I am grooming myself as I am learning with day by day the gratitude and how to find more gratitude in each and everything. If I just look around, feeling that calmness from me. So I am extremely thankful to you guys, for all my mentors who really have enhanced my journey. So thank you so much. And the second question is there going to be a different Zoom link each and every day? Because I don't get the link, so I always request either Rajan sir or Rashmi ma'am or someone else who can you share it, or is there another group where you guys add the link and I can get it from there? Here with your first question, your second question is have you joined this 66 dots? Have you paid for this? Every day the link is different. Okay. It will not be the same. Okay. Every day the Gotcha. link will be different, and it's given every day. It's been created and given, right? Got So it. Okay, when thank it is you. open for all, we share the link to everyone so that everybody can join. When Rajan sir says this is very important class and this is open for all, then we share it we share the link in each and every group. Otherwise, every day the Got link changes. Yes, ma'am. And Thank what you is so your much. second? I appreciate What was the first? Okay. Yes, once these sessions are done, then you're going to start something new, and how will I be informed about it? That will be informed in the group itself, and definitely Rajan sir will definitely tell us what to do, what not to do, and so whatever he says, we do follow. Because Thank you after so all, he much. is the Absolutely, he's Rajan sir. Have an awesome day. I really appreciate you so much. Shanti. Thank you. Thank you so much. Thank you. So we all are here to encourage each other in writing gratitude, blessing each other, and definitely practicing. Main thing is practicing. Okay. Thank you so much. और कौन है साथ में भी? और किनका शेयरिंग है या कुछ पूछना है? अतुल जैन जी, हाँ. अनम्यूट करेंगे अपने आप को? अतुल जैन. ओके. हाँ. गुड इवनिंग मैडम. गुड इवनिंग. मैडम मैंने जो है जुलाई से अगस्त के बीच में लिया मैम की जो है वो मैजिक बुक की थी, और तब से मैं जो हूँ रोज जो है ग्रेटिट्यूड लिख रहा था. अभी मैं जो हूँ अपने भतीजे के साथ जो है ये स्पीति के जो है एडवेंचर टूर पे आया हुआ हूँ बेटे के साथ. तो 2 दिन जो है मैं चंद्रताल गया. बहुत हाइट पे है वो, 4500 मीटर पे है वो. तो वहां पर मुझे कुछ चैलेंज महसूस हुआ एक दिन. उसके बाद मैंने कल और परसों 2 दिन लगातार जो है भर के ग्रेटिट्यूड लिखे, और मेरी सारी प्रॉब्लम जो है बिल्कुल सब सॉल्व हो गया. और ग्रेट. हाँ, इतना मतलब अब तो इतना भरोसा हो गया है. बल्कि कल जो है शिमला निकलना है, बस पकड़नी है कल. तो उसमें जो है वो हमसे कह रहे थे 2-3 जगह की सर जो है वहां पर हो सकता है कि रास्ते में कोई चैलेंज मिले जय माम का. तो हमने कहा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, और आराम से समय पे जो है बस मिल जाएगी. तो मुझे तो ये है कि 100% इतना विश्वास हो गया है कि इतनी शक्ति है ग्रेटिट्यूड में कि मतलब उसको कोई नकार ही नहीं सकता कुछ.
वाह, मतलब बिल्कुल। तो इसमें आपको ये कहना चाहिए कि आप तो अपने भतीजे के साथ में, आपने अपने भतीजे को बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता नहीं है, लेकिन मेरे साथ यूनिवर्स है, हमें कोई चिंता नहीं है। ये आपको बोलना ही पड़ेगा। इसमें मैं नहीं आना चाहिए, यूनिवर्स आना चाहिए, है ना? ठीक ठीक, तो यूनिवर्स बिल्कुल हमारे साथ है बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। थैंक यू है मैडम, ना? थैंक यू, थैंक जी, यू, थैंक यू थैंक सो यू मैडम, मच। थैंक यू, थैंक यू अतुल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कौन है? और कोई नेक्स्ट? अनुभा, यू आर लाफिंग, कुछ है आज अनुपा शेयरिंग? जी अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को, कुछ शेयरिंग कीजिए। हाँ, सर आज पहले तो नमस्कार करूँ बहुत प्यारे मेंटर्स को हमारे। तो आज एक न्यूज मिली अभी कि एक समाज है हमारे आसपास ही हमारी कम्युनिटी का, तो हम लोगों से जुड़े हुए नहीं थे अभी तक हमें पता ही नहीं था कि ऐसे हमारे आसपास में ही लोग हैं जो कि एक सोसाइटी फॉर्म करे हुए हैं। तो अब उनसे जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत मेरे लिए एक गुड न्यूज है आज की। तो जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो मैं और अच्छे से शेयर करूंगी। और एक और बात शेयर करना चाहती थी कि मेरे हस्बैंड भी सुनते हैं, तो वो भी अब बहुत, उनमें बहुत चेंज आ रहा है, बहुत पॉजिटिविटी, पहले से भी पॉजिटिव थे, वो बहुत पॉजिटिव हैं और लाइफ को अब दूसरे तरीके से भी वो देख पा रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहती हूँ। आपकी आवाज, या मेरे में कोई मेरा कनेक्शन प्रॉब्लम है, या आपकी आवाज लास्ट में मुझे सुनाई नहीं दी? ये आवाज में आपको? यस यस मैम, अब आ रही है आवाज क्लियर? अभी आ रही है, हाँ। हाँ, वो पीछे टीवी भी चल रहा है ना, तो ओके, वो मिक्स हो गया। तो वही ना, देखिए ऐसा है ना कि राजन सर जैसे कल का मैंने सेशन तो अटेंड नहीं की थी, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग सुन रही थी। तो उन्होंने क्या कहा कि हमको यहाँ भगवान नहीं है कि हम सबको बैठे हैं चेंज कर दें यहाँ पर सबको, है ना? हम एक इंसान है, हम किसी को चेंज करने नहीं बैठे यहाँ पर, हम भगवान नहीं है, है? तो लेकिन क्या है कि हम जब अपने में चेंज लाते हैं, हम जब अपने में चेंज लाते हैं, तो हमारा परिवेश ऐसे ही बदल जाता है। अपने में चेंज लाना, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि हम जब गृहणियां हैं तो हम उसी लैंग्वेज में बात करते हैं, जो जिस फील्ड में होता है उस लैंग्वेज में बोलता है। अगर हम अपने क्रोशेटर वाले लैंग्वेज में बोलेंगे तो वो है जो, फॉर एग्जाम्पल घर में अगर हम मान लो खुद ही साफ सफाई करके रखते हैं, जिस दिन साफ सफाई करते हैं तो हम बहुत तरीके से कॉशियस होके रहते हैं कि, और हमारे आजू बाजू जो भी रहते हैं कहते हैं कि अभी तो मम्मी सफाई करी है, हमें भी साफ सुथरा रखना है, जूते तरीके से रखने हैं, कपड़े तरीके से रखने हैं, कपड़े सुखाने हैं, ये करने हैं, वो करने, सब कुछ है ना? तो इस तरह से सारे लोग अपने आप ही, उन लोग चेंज हो जाते हैं, अपने आप ही सब डिसिप्लिन में आ जाते हैं। जहां देखते हैं कि अरे मम्मी आज अभी ग्लास यही छोड़ दी है, कॉफी पी के कप यही छोड़ दी है, तो वो भी छोड़ देते हैं। यस मैम। सब कर, अरे मम्मी यार रख देंगे, अरे मम्मी कर देंगे ना मम्मी। तो ये चलता है, दिस इज ह्यूमन नेचर। अगर हम थोड़ी ढिलाई देंगे, अगर हम खाना खाने बैठे हैं और हम खाने के प्लेट में सारा कुछ फिनिश कर रहे हैं, फिनिशिंग ईच एंड एवरी थिंग जो हमने लिया है और टेबल पे जो बना है, अगर हम सारा कुछ खा रहे हैं, तो हमारे बच्चे हमारे साथ जो भी रहेंगे हमको देखेंगे और कहेंगे अरे नहीं, अगर वो थोड़ा आगे पीछे करते हैं, नानुकर करते हैं, लेकिन दे विल ट्राई टू फिनिश एवरीथिंग, लाइक हम उनको चेंज नहीं कर सकते। वो मुझे देख करके अपने आप ही उन लोग करने लगेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। और नहीं, अगर हम खुद ही वेस्ट करेंगे तो थोड़ा लिया, चखा, नहीं पसंद आया, उसको फेंका, इसको फेंका, इसको किया, इसको किया। तो यही ह्यूमन नेचर है, ऐसे चलता रहता है वाला, है ना? तो अपने आप में हम चेंज लाएंगे तो हर कोई चेंज ही नजर आएगा हमें, और वो अपने आप आ जाएगा, सब आएगा, सब कौन नहीं सुनेगा, सब सुनेगा, है ना? तो हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो अभी हर दिन एक ही मैनिफेस्ट करो कि सपना और ताराचंद जी की तरह हम दोनों एक ही फ्रेम में बैठेंगे और क्लास करेंगे। वो अभी तो हाँ, होगा, बिल्कुल होगा। पक्का होगा, आज पक्का होगा, ये पक्का होगा। सपना जी तो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मेरा छोटा ही शेयर है, आप लोगों के लिए बहुत छोटा होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा है ये। अभी ना मैं तिरुपति में बहुत सारी यात्राएं करके आई इस साल। 2023 मेरे लिए बहुत शुभ है, डायमंड ईयर है मेरे लिए।
द्वारका का 15 साल से बन रहा था, बिगड़ रहा था, द्वारका यात्रा हो गया, बगल में सोमनाथ यात्रा हो गया है और वैष्णो देवी यात्रा हो गया है। उसके बाद मैंने लकीली और अनफॉर्चुनेटली मेरा महाकालेश्वर का भी हो गया था। तो महाकालेश्वर देखने के बाद में वहां इंदौर में मैंने एक बालाजी का मंदिर देखा था। हमने कहा अरे बालाजी आपका दर्शन इस बार नहीं हुआ है, जान लीजिए यहाँ आप दिख गए हैं, ये भी तो आप तो सर्वंतर्यामी हैं, सब जगह रहेंगे, हम यहाँ आपका दर्शन कर लिए, ठीक है करके वापस लौट गए। हम जमशेदपुर आए। आने के बाद में मेरी कजिन यहाँ रहती है, वो 4 दिन बाद उनको फोन करती, दीदी आप तिरुपति जाएंगे? हमने कहा नहीं रही, बहुत घूम घूम के थक गए, हम नहीं जाएंगे। दोबारा फिर फोन किया, बोले नहीं जाएंगे। फिर मेरे दामाद को फोन की, दामाद बोला मेरी पत्नी का अभी छुट्टी नहीं है इसलिए मैं नहीं जा सकूंगा, हम लोग दोनों साथ में जाएंगे। फिर मेरे दामाद हमको फोन करके बोलता जाइए ना, क्या घर में बैठ बैठ क्या करेंगे, बुला रही है जाइए आप। तो फिर हम बोले नहीं हम नहीं जाएंगे। बेचारी मेरी बहन फिर फोन की, बोली वो नहीं जाएंगे, बोला तुम चलो ना दीदी, चलो ना दीदी, चलो ना दीदी। तो मेरे हस्बैंड बोले अरे भगवान तुमको बुला रहा है इतना बार, तुम क्यों नहीं जा रही हो, जाओ, हम तो बहुत बार घूम के आए, तुम जाके आओ। अचानक से मतलब मैंने हम सोचे भी नहीं थे, वो भगवान का दर्शन मेरा ये, और इतना अच्छा दर्शन हुआ कह नहीं सकते हैं। और दूसरा है कि जब से जनवरी से हमने इसी साल जनवरी से शुरू किया है, एक अजब सी शांति। मैसेज में बहुत गुस्सा आता, तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता, ये बात नहीं है, लेकिन बहुत शांत प्रवृत्ति वाली हूँ, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं करती हूँ, लेकिन गुस्सा आता है तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। तो लेकिन वो गुस्सा भी शायद मेरा भी खत्म हो गया, लगता है कोई सामान दिखता नहीं है या होता नहीं है या मिल जाता है, कुछ भी होता है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ मिल जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। एक बात है, जब भी कपड़े सुखाती हूँ, भगवान मेरा कपड़ा सब सूख जाएगा, ठीक है, उसके बाद पानी बरसेगा। आज ऐसी बात, सुबह से पानी बरस रहा था, हमने कपड़ा सुखा दिया, पानी बरसा नहीं, धूप भी बहुत ज्यादा कड़क की नहीं चली, कपड़े सूख गए। हमने देखा अरे कपड़े सूखे, निकाले, जैसे निकाले जम 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 पानी बरसा शुरू हो गया। एक तो मिराकिल है वाला था, मेरी सोच और भगवान की माया और आप सबका। देखो हम लोग दोनों एक ही फ्रेम में हैं अंशु जी, मैं और पति सपना जी, और उनके समान हम लोग दोनों एक ही फ्रेम में बैठते हैं आजकल। बात है, सही बात है अम्मा, थैंक यू मच, थैंक यू सो मच। अम्मा जी आप हमारे शहर से हो? अम्मा जी हाँ, आप हमारे शहर से होके उज्जैन से? मैं उज्जैन से हूँ, महाकाल की नगरी से हूँ। ताराचंद जी हमारी अम्मा तो दुबई होके आ गई, तब तो नहीं जा पाई, तब तो आपके दुबई शहर से भी होके आ गई। नहीं, अभी अम्मा ने बोला ना कि मैं महाकालेश्वर होके आई, तो अब मैं महाकालेश्वर की नगरी से हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चलिए 9 बज रहा है, हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। अभी जैसे बताया था कि अफर्मेशंस हमने कंप्लीट किया है। अफर्मेशंस आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो आई एम करके शुरू करते हैं। उसमें कहने का है कि मैं हूँ, वहां से शुरू करते हैं हम। और अब आज का है हमारा ग्रेटिट्यूड कार्ड, हम शुरू करेंगे, सॉरी, है ना। तो आज हम शुरू करते हैं ग्रेटिट्यूड कार्ड्स। और जैसे कि ग्रेटिट्यूड में ब्लेसिंग्स लिखना है और उस पर हमको ग्रेटिट्यूड भी करना है। जैसे हमने अपने लास्ट यस्टरडे तो राजन सर का था, उसके पहले बताया था कि ब्लेसिंग कुछ भी है हमारे साथ, आज जो कुछ भी है, अच्छी सेहत है ये हमारी ब्लेसिंग है, हम सांस ले रहे हैं ये हमारे लिए ब्लेसिंग है, इसके लिए हमको ग्रेटफुल होना है, इसके लिए हमको थैंक यू बोलना है ना। सो दीज आर व्हाट, देखते हैं कि सर कैसे डिजाइन किए हैं, कैसे मतलब उन्होंने लोगों के लिए। हाँ यस, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्योंकि यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है और थोड़ा सा नेटवर्क अप डाउन होता रहेगा। तो आज आप लोग सबको मैजिक डस्ट दीजिए कि मस्त रहेगा पूरे सेशन में, है ना। थैंक यू सो मच। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे से हो नहीं रहा है, उसका शेयर नहीं हो रहा है। अच्छा, शेयर नहीं हो पा रहा है, ओके। डिवाइस तो उसमें कोई अच्छा, उसको एक काम करिए, रीड, एक एक लाइन रीड करिए, मैं उसको ये कर लेती हूँ। कार्ड है मेरे पास, तो मैं कार्ड है मेरे ना? पास, मैं कार्ड से रीड पढ़ लेता हूँ। हाँ हाँ, उसको रीड कर लीजिए।
पहले कौन सा सबके पास में कार्ड? तो ग्रेटिट्यूड कार्ड्स होंगे ही, मतलब जितने लोगों ने मंगवाए हैं उन सबके पास में तो होंगे ही, तो अपने कार्ड्स खोल के बैठेंगे तो ज्यादा बेटर है ना। क्योंकि पहले कौन आज सा मैं कार्ड किया मोबाइल से ले रही हूँ, जोकर? अभी लैपटॉप ऑन करूंगी तो बिल्कुल वो भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और कहीं यह हो जाएगा, सब सही जाएगा, सब सही जाएगा। या तो आप मुझे तो बस बता दें कैसे करना है तो मैं कर लूं, मेरे पास डाउनलोड किया मैंने इसमें लैपटॉप में। एक अच्छा, मैं शेयरिंग का ऑप्शन देती हूँ आपको, रुकिए, अनुभव आप बता दीजिए मुझे। स्टार्ट करिए। हाँ जी। Part 1. Gratitude is magical. What can you do right now to begin to turn your life around? The very first thing is to start making a list of things to be grateful for. यस, तो इसमें सबसे पहले दिया है, सबसे पहला लाइन यही है, ग्रैटिट्यूड इज मैजिकल। यस, अगर सोचेंगे कि ये मैजिकल है तो ये मैजिकल है, तो इसीलिए कहते हैं ना कि मैजिक देखना है तो लॉजिक मत लगाओ, लॉजिक देखने लगेगा तो आया हुआ मैजिक भी चला जाएगा। और लॉजिक लगाना, मैजिक चला जाना, ये सब बड़ा एकदम अटपटा लग रहा है, नहीं। लेकिन हम जब बच्चे थे तो स्कूल में जैसे जादूगर आया, मैजिक दिखाया है, बड़ा अच्छा लगता था, राइट। तो हम उसी दुनिया में खो जाते थे कि अरे यार यही सच है। वो आके हम लोग को लाइन से सामने बैठा दिया जाता, जो छोटे छोटे हम लोग होते थे तो सामने लाइन से बैठा दिया जाता था, और उसके बाद में कहते थे कि वो बड़ा आकर के मैजिक दिखाएगा था, हम लोग पूरा उनके ड्रेस पे कॉन्सेंट्रेट करने लग जाते थे, और किस तरह से कैसे वो फेदर्स निकाला, चिड़िया बना के उड़ाया, या फिर वो फेदर, चिड़िया को पकड़ के फेदर बना दिया, फ्लैग बना दिया, वो रिबन्स को रुमाल लेकर के एक के साथ एक, मतलब पूरा कंटिन्यूस रुमाल बन रहा है, बहुत सारा कुछ मैजिक दिखाता था। एक बार तो आया हमारे स्कूल में, और हम जो बैठे सामने के रो में बैठे, तो मेरे नाक में से सभी के नाक में देखो मैं बॉल निकाल रहा हूँ, मैं बॉल निकाल रहा हूँ, तो किसी के नाक से रेड बॉल निकाला, किसी के नाक से येलो बॉल निकाला, किसी के नाक से ब्लैक बॉल निकाला, ऐसे ऐसे कुछ, ऐसे आया सामने, ऐसे किया और ऐसे हाथ दिखा रहा है। वी वर लाइक, ओ माय गॉड, मेरे नाक से बॉल निकल गया, ऐसे हम लोग ये गए। तो ये अगर मैजिक, अगर हम बिलीव करते हैं कि ये सच में ये मैजिक हो रहा है, तो मैजिक हो रहा है हमारे साथ में। अब जैसे हम सोच रहे हैं, जैसे कि अभी, जैसे अभी आज ही बताया कि किसी के साथ कुछ भी होता है तो अरे ये कैसे हो गया, तो पूरा मैजिक है, ये तो पूरा ही मैजिक है। बहुत सारे शेयरिंग्स आते हैं ना, अचानक अचानक कुछ कुछ हो जाता है सबके साथ में। तो ये वाकई में अगर हम देखेंगे कि ये मैजिक क्यों हो रहा है हमारे साथ में, बिकॉज वी आर ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। हम जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना हमको मिलेगा, जिस चीज के लिए हम ग्रैटिट्यूड करेंगे वो हमें मिलेगा। और मैजिक बुक जितने लोगों ने किया है यहाँ पर, और जिन लोगों ने नहीं किया है, तो वो उनके लिए भी है कि सबसे पहला लाइन है कि ग्रैटिट्यूड इज रिचेस, ग्रैटिट्यूड इज द ओनली रिचेस। और ये भी कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड जो है ना, इट इज द ओनली बेस्ट फ्रेंड। वो हमें कभी छोड़ के नहीं जाता है, हमें कभी नहीं छोड़ता है। हम इंसान ही क्या करते हैं, कभी किसी को पकड़ते हैं, कभी किसी को छोड़ देते हैं, है ना। तो ये ग्रैटिट्यूड इज रियली मैजिकल, ये मैजिकल, मैजिक की दुनिया है ये। तो कहते हैं कि मैजिक हुआ कैसे, यूनिवर्स में हमेशा हर कुछ प्रेजेंट है, हमें पहले से ही प्रेजेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है यूनिवर्स में। बस है कि जो हमें दिखता है तो लगता है कि यस ये हमें दिख रहा है, ये प्रेजेंट है। हमें जो नहीं दिखता है तो हमें लगता है कि ये हमें दिख नहीं रहा है, ये प्रेजेंट नहीं है ना। लेकिन लेकिन अभी जैसे कि अभी पंखा चल रहा है, हवा चल रही है, हवा लग रहा है, वो हमको हवा दिख नहीं रहा है, लेकिन पंखा चल रहा है, कपड़े उड़ रहे हैं और हमें हवा लग रही है, तो हम फील कर रहे हैं उसको, हाँ हाँ ये हवा है। अगर पंखा बंद भी कर दो तो यूनिवर्स में, स्पेस में हवा है, ऑलरेडी है वहां पे। हमें कैसे दिख रहा है, पेड़ पेड़ हिलता रहेगा, बहुत मतलब रहेगा ना कि जैसे पूरे पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, कपड़े उड़ जा रहे हैं, तो लगा तूफान आ गया, तूफान आ गया, एकदम आवाज के साथ में, तब हम महसूस कह रहे हैं। और ऐसे ही है, शांत है यूनिवर्स, कुछ नहीं हलचल है, तो क्या उसमें हवा नहीं है, हवा है। तो जो हम देखते हैं तो वही सोचते हैं, अब बोलेंगे कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, राइट। तो लेकिन ये मैजिक जब भी होता है, ग्रैटिट्यूड होने से ही होगा।
जितना हम ग्रेटफुल रहेंगे, जिसके लिए रहेंगे ग्रेटफुल, वो हमें उतना मिलता चला जाएगा। और जैसे ही जिस दिन हम ग्रेटफुल, हम थोड़ा भी डगमगाएं, मतलब एक, अगर एक डॉट जैसा भी हमारा एक क्वेश्चन मार्क आ गया, तो हमारे हाथ से वो फिसलता चला जाएगा। सो दिस इज कंप्लीटली माइंडसेट, दिस इज कंप्लीटली माइंडसेट। इसमें जैसे कहते हैं ना, कल भी राजन सर बता रहे थे कि 80% जो रिच होते हैं ना, वो 80% अपने माइंडसेट से रिच होते हैं। कल ही का क्लास था उनका, और उन्होंने बताया था, बड़े अच्छे तरीके से बताया कि 80% जो है ना वो माइंडसेट से होता है। तो लेकिन वाकई में अभी उसके बाद में अगर हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो व्हाट यू कैन डू राइट नाउ टू बिगिन टू टर्न योर लाइफ अराउंड। अभी के अभी अगर आपके लाइफ में 360 चेंज लाना है, कहते हैं ना कि 360 चेंज आ गया, एकदम आ गया है, तो क्या कर सकते हैं ऐसा अपने लाइफ को चेंज करने के लिए? क्या सकते हैं हम ऐसे, क्या कर सकते हैं कि मेरा लाइफ तुरंत अभी जैसे एकदम होता है ना कि जस्ट पलट गया। अभी तक हम दुखी थे और तुरंत हम खुश हो गए, या अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं था, अचानक से कुछ मिल गया, तो हमें लगता है कि हाँ अरे बड़ी मैजिक हो गया, अरे कुछ ऐसा हो गया, ये कैसे हो गया? क्या कर सकते हैं हम कि मेरा लाइफ अगर अचानक चेंज हो जाए? हमारे पास सब कुछ है, लेकिन भी कोई एक लैक फीलिंग रहती है। घर पूरा भरा हुआ है, किचन भंडारे से भरा हुआ है, हर एक रूम में एसी लगा हुआ है, फुल टाइम करंट आता है, और जहां हमारे जैसे लोगों के लिए करंट नहीं होता, वहां इन्वर्टर भी लगा पड़ा हुआ है, घर में गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, ड्राइवर है, एवरीथिंग। फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि अरे यार कुछ कुछ का एक पॉइंट ब्लैंक जैसा एक आ जाता है, एक दरार जैसा। व्हाट नेक्स्ट? उससे जो बाहर निकला, तो यस, उससे जो निकल गया तो लगा कि उसका तो 3 हो ही जाना है, और उससे जो नहीं निकला तो वो फिर बिलो द लाइन, बिलो द लाइन चलता जाता, चलता जाता, चलता है। तो उससे निकलने का तरीका क्या है? वी हैव टू, अरे हमारे पास ये है, वाओ आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस, अरे हमारे पास ये है, आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस, हमारे पास ये है, आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस, आई एम सो ग्रेटफुल एंड हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंक यू यूनिवर्स। तो यही एक चीज है जो हमको मेरा लाइफ को चेंज कर देगा। और जब हम बदल जाएंगे तो हमें पूरा दुनिया ही बदला हुआ नजर आएगा। तो मुझे देख करके सारे लोग बदल जाएंगे। पहले बोलते हैं अरे क्या है, जब देखो थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते रहते, फिर कुछ कुछ कभी कभी चिढ़ाने के लिए भी थैंक यू करने लगते थे, और आजकल पर्पसली वो थैंक यू बोल के जाते हैं। तो हमने नहीं बदला है किसी को, मैं अपने आप को बदल ली। मैंने कहा नहीं, थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है, थैंक यू करना बहुत जरूरी है। आई कैन से थैंक यू ओनली व्हेन आई एम ग्रेटफुल। और ग्रैटिट्यूड भी तभी हम कर पाएंगे व्हेन आई एम ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ, तभी हम दूसरों के लिए ग्रैटिट्यूड कर पाएंगे। कहते हैं ना, अपना पेट जब भरा हुआ है ना, तो दूसरों को खाना खिलाना बड़ा आसान होता है। अपना जब पेट भर जाता है तो लगता है कि जो भी बचा है, जो कुछ भी है, यार थोड़ा सा खा लो, यार थोड़ा सा खा लो, तुम थोड़ा ले लो, कंप्लीट कर देंगे, फिनिश कर देंगे, फिर कौन फ्रिज में रखेगा, थोड़ा थोड़ा खा लो प्लीज 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 प्लीज, है ना? और जब अपना पेट खाली रहता है, भूख लगी रहती है, तो हमारे दिमाग में यही चलता है कि अरे यार जल्दी खा के उठो, हम लोग को भी खाना खाना है, कहीं ये खाना खत्म तो नहीं हो जाएगा, हमारे लिए बचेगा तो, ऐसे फास्ट फास्ट खा रहे हैं, ये हमारे लिए बचेगा तो, कहीं खत्म तो नहीं हो जाएगा। ये भी एक आता है, क्यों? क्योंकि वी आर ह्यूमंस, और ह्यूमन का दिमाग ऐसा ही कहीं ना कहीं ये आएगा, है ना? तो ये ह्यूमन नेचर है। ये सब सवाल आते रहते हैं क्योंकि हम ही लोग तो सब कुछ हमारे पास ही है। तो फिर हम कैसे कर पाएंगे? जब हम, मेरा पेट भरेगा तो हम दूसरों को आसानी से खाना खिला पाएंगे, खिलाने में बड़ा मजा आएगा, खा लो खा लो खा लो खा लो। तो इसीलिए कह रहे हैं, जब ये ग्रेटिट्यूड हम अपने लिए करेंगे ना, कहते हैं ना सेल्फ लव, जब अपने आप को प्यार करेंगे तो हम दूसरों से प्यार करने लगेंगे। जब हम अपने अपने लिए, अपने बॉडी पार्ट्स के लिए, अपने लिए ग्रेटफुल हो जाएंगे कि वाओ आई कैन सी, तब हमको लगेगा कि यस आई हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीवन। हम अपने जब ग्रेटिट्यूड से भर जाएंगे, अपने आप के लिए हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, सबके लिए, मेरे हाथों को अगर हम अपना ध्यान देंगे तो हम दूसरों के हाथों को भी ध्यान देंगे। अपने आंखों के लिए हम ध्यान देंगे ना, और हम थैंक यू बोलेंगे, अपनी आंखों के लिए ग्रेटफुल हो जाएंगे, अपनी आंखों की रोशनी के लिए ग्रेटफुल होंगे, तो दूसरों की आंखों के लिए भी हमको समझ में आएगा
कि यस आई हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दिस। अपने लिए ही नहीं कर, बोले नाटक मत करो। तो अभी कहेंगे कि कोई पर एक बचपन में होता था, बच्चा बोला मम्मी पेट दुख रहा, पेट दुख रहा, पेट दुख। नाटक मत करो, स्कूल जाने के टाइम बहाना मत करो, स्कूल जाना है पेट दुखने लगा, ये नहीं खाना पेट दुखने लगा, वो नहीं करना पढ़ाई करने के लिए बोले कि पेट दुखने लगा है ना। ये सब नाटक मत करो, इसको बंद करो। तो इसलिए सबसे पहले अगर अपने लाइफ को अभी के अभी इसी मोमेंट में हमको चेंज करना है तो करना क्या है? आई हैव टू बी ग्रेटफुल। ग्रैटिट्यूड करना है तो किन किन चीजों के लिए हम ग्रैटिट्यूड करेंगे वो भी बताया गया है इसमें। द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। तो सबसे पहला काम करना क्या है कि हमको लिस्ट बनाना, कॉपी खोलना है, जर्नल उठाना है, पेन लेना है और कॉपी खोलते ही पहले उस समय के लिए धन्यवाद, इस क्षण, इस मोमेंट के लिए धन्यवाद, इस ग्रेटिट्यूड कॉपी के लिए धन्यवाद, इस पेन के लिए धन्यवाद, मेरे दिमाग के लिए धन्यवाद, मेरे मन के लिए धन्यवाद कि मेरा मन कहा कि अभी इस वक्त बैठ जाओ और ग्रेटिट्यूड करो। तो वहां में धन्यवाद पहले अपने आप को देना है, उसके बाद हम बाकी जाकर के हम दूसरे को धन्यवाद। अगर हम बैठे ही ना ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए तो धन्यवाद किसके लिए लिखे? अगर हम बैठे ही, मेरे दिमाग में ये विचार ही ना आए कि हम कृतज्ञता करें, कृतज्ञ होएं, तो हम करें किसके लिए? तो सबसे पहले अपने आप को धन्यवाद। यस, हमको ग्रेटिट्यूड लिखना है, हमको ग्रेटफुल होना है। हम कैसे कर सकते हैं, है ना? हम कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक योर जर्नल एंड स्टार्ट राइटिंग। एक लिस्ट बनाते चलिए कि हमको किसके लिए ग्रेटफुल होना है। सबसे पहले तो इस कालमान परिस्थिति के लिए हमें धन्यवाद। ये अभी के अभी हम बैठे हैं, उठे बैठे जर्नल खोले हैं, हम इस जगह के लिए धन्यवाद जहां हम बैठे हैं। कुर्सी पर, जिस कुर्सी पर बैठे हैं, जिस टेबल पर रखे हैं, उसके लिए धन्यवाद हो जाए। मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपकी अपनी ग्रेटिट्यूड से, आपका अपना दिमाग है, आपका अपना विचार है, आपके अपने थॉट्स है, आप अपने हिसाब से लिखेंगे। इस जगह में जहां बैठे हैं, जिस परिस्थिति में बैठे हैं, उस परिस्थिति को धन्यवाद। जिस जगह में बैठे हैं उसके लिए धन्यवाद। मैं अभी सांस ले रही हूँ, मेरी सांसों को धन्यवाद। मेरी सांस ही ना चले तो मैं ग्रेटिट्यूड क्या लिखूंगी? मेरे आंख से दिखेगा ही नहीं तो मैं ग्रेटिट्यूड क्या लिखूंगी? अपने आंखों को धन्यवाद। मेरे दिमाग इतना चल रहा है, इतना बढ़िया चल रहा है, दिमाग ही नहीं काम करेगा तो मैं ग्रेटिट्यूड क्या लिखूंगी? अपने दिमाग के लिए धन्यवाद। अपने हाथों के लिए धन्यवाद, उंगलियों के लिए धन्यवाद, एक एक मसल्स के लिए धन्यवाद कि यस मेरे हाथ के मसल्स बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं पेन उठा रही हूँ, मैं पेन पढ़ पा रही हूँ, सोच पा रही हूँ, सबके लिए धन्यवाद। पूरे शरीर के लिए धन्यवाद, मेरे दिल के लिए धन्यवाद। दिल ना धड़के तो फिर कहानी खत्म। लब डब सुनाई देता रहता है। वो आवाज सुनने के लिए डॉक्टर के पास जब जाते हैं, जब ईसीजी होती है, इको होती है, कान में लगाते हैं, लब डब सुनाता है। देखो आपकी दिल की धड़कन कितनी बढ़िया है ना? तो वो दिल की धड़कन के लिए धन्यवाद। एक शरीर के एक एक अंग के लिए धन्यवाद। मेरी रीढ़ की हड्डी कितनी बढ़िया है कि एकदम हम सीधा बैठ पा रहे हैं। वो भी कितने लोग हैं जो व्हीलचेयर पे भी है, कितने लोग जो है बेड पर भी है। तो ये हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए धन्यवाद कर लिए। अब उसके बाद आता है, सबसे पहले यूनिवर्स आता है, क्योंकि यूनिवर्स ने हमें सब कुछ दिया है। यूनिवर्स को धन्यवाद। 5 तत्वों से जो प्रेयर में, अरविंद सर के प्रेयर में, राजन सर के प्रेयर में वो करवाते हैं ग्रेटिट्यूड प्रेयर, उससे भी बहुत हमें आइडिया मिल जाता है। 5 तत्व के लिए धन्यवाद। 5 तत्व, 5 एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वो पूरा, उसके लिए धन्यवाद। अफर्मेशंस करते हैं ना, कभी लगता है कि हम ये है, वो ऐसे कैसे हो गया, मैं लेट हो जाती हूँ हमेशा बार बार, तो आई एम पंक्चुअल, आई एम पंक्चुअल, आई एम पंक्चुअल। ये सब अपने ब्रेन को धन्यवाद देते हैं, है ना? जो हम खाना खा रहे हैं उस खाना को धन्यवाद। जो खाना तो खा रहे हैं कि खाना हमने बनाया, धन्यवाद मेरे को, खाना मैं ही खा रही हूँ उसको धन्यवाद, खाना मैं पचा रही हूँ, मेरा पेट पचा रहा है उसको धन्यवाद। आया कहाँ से खाना? धरती माता का धन्यवाद कि वो अपने को अपना जगह दी है हमको, हमें खाना, मतलब कि वो उपजाने के लिए, अनाज उपजाने के लिए, उसका धन्यवाद। उसके बाद मैम इसका पानी बैक, बरस रहा है ना, कितना पानी सींचते हैं, पानी बरस रहा है, वो बारिश का धन्यवाद। किसान का धन्यवाद जो दिन रात काम कर रहा है।
वो डिलीवरी बॉयज का धन्यवाद, जो कंपनीज जो उसको लेकर के पैकेजिंग करते हैं, सब मतलब कि सबको घर में पहुंचाने का काम करता है। अच्छा ऐसे पहुंच जाता है क्या? हम कहाँ से कमा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो मेरा धन्यवाद कि हम कमाने जा रहे हैं। पैसे आ कहाँ से रहे हैं? जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस जगह भी काम कर रहे हैं, उसको धन्यवाद कि वहां से मेरे पैसे आ रहे हैं। वो जो चला रहा है उस इंसान को धन्यवाद। अभी एक खाना दो रोटी की बात है, लेकिन कहाँ तक आपका धन्यवाद जाता है, ये सोचिए। कि वो पैसा जो कंपनी खोला है, कोई कंपनी है उसमें हम काम कर रहे हैं, उस कंपनी के मालिक को धन्यवाद कि तुम्हारा मुनाफा होता रहे, तुम्हारा धन्यवाद भगवान, तुम बहुत अच्छे से रहो ताकि तुम्हारा बहुत ज्यादा मुनाफा हो, तुम्हारे सारे वर्कर्स, तुम्हारे सारे कलीग्स बहुत खुश रहे, उन सबको धन्यवाद। तब कहीं जाके दो रोटी हमारे प्लेट में आता है। तो यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स कि आप किस किस चीज के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। एक हम जब नया नया शुरू किए थे तो इसमें आशमीन मैम की क्लासेस में भी और अरविंद सर की क्लास में, बहुत जितने मेंटर्स की क्लास मैंने कहा, खड़े खड़े 100 धन्यवाद करवा दी, 100 ग्रेटिट्यूड्स करवाई। मैंने कहा 100 ग्रेटिट्यूड्स तो ऐसे ही 1 मिनट में हो जाएगा। मैंने कहा 1 मिनट में 100 ग्रेटिट्यूड्स ऐसे कैसे हो सकता है? फटाफट वो जिस पर आंख जा रहा है उस पर उसको धन्यवाद। एसी दिखा, एसी को धन्यवाद। पंखा दिख रहा, पंखा को धन्यवाद। लाइट दिख रहा, लाइट को धन्यवाद। यहाँ पर मतलब हमारे जो भी मतलब ये रखे हुए हैं, या फोटो फ्रेम रखा हुआ उसको धन्यवाद। यहाँ पे सोफा पड़ा है उसके लिए धन्यवाद, हम बैठे हैं उसके लिए धन्यवाद, कुशन्स है उसको धन्यवाद। एंड इन दिस वे शी मेक, बोले और निकल के दूसरे रूम में चले जाओ, किचन में चले जाओ, किचन में जो दिख रहा सबको धन्यवाद बोलते चलो। पहले जब हम देखते चलेंगे तो अपने आप लिखना भी आ जाएगा और लिखना भी फास्ट हो जाएगा हमारा। सो अगर धन्यवाद करना ही है, दिल से करना है, तो देर आर एन नंबर ऑफ वेज, एन नंबर ऑफ थिंग्स वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर। और जब हम सबके लिए ग्रेटफुल हो जाएंगे ना, सबको हम इतना मतलब कि ग्रेटिट्यूड करने लगेंगे, तो वाकई में हम सबको होल्ड करके रखते हैं। व्हेन वी आर ग्रेटफुल देन ओनली वी होल्ड, व्हेन वी आर नॉट ग्रेटफुल हमारे हाथ से फिसलता जाता है, वी डू नॉट होल्ड इट। ठीक है, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जब टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो हमारे हाथ में और कुछ है नहीं, तो फिर वो तो यूं ही निकल गया। तो अच्छा ये दूसरा है वाला ना, दूसरा कार्ड है। ओके, स्वामी विवेकानंद का है, सेकंड कार्ड है ये। स्टैंड अप, बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर एंड नो दैट यू आर द। आ रहा है मैम पढ़ने में? नहीं नहीं, ये पहला कार्ड खत्म हो गया है क्या? पहले का बैक साइड पढ़ना है मैम, हाँ जी हाँ जी, है ना? स्टार्ट बैक फीलिंग साइड पढ़ना है। Start feeling grateful for all the things that you feel good about. Make a list of everything you are grateful for. Write minimum 9 blessings daily. यस, इसमें तो वही कहे कि मिनिमम 9 ब्लेसिंग, जैसे कि मैजिक बुक में दिया है कि 10 ब्लेसिंग्स हर दिन लिखना है। What you are blessed, what are you are having is blessings, और I am really grateful for whatever I am having. राजन सर ने कहा कम से कम 9 तो लिखो। अगेन वो नंबर पे जा रहे, जैसे 3, 6, 9, ये वो जब होता है ना कि 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन, से तो 3, 3, 3, 3, 3, तो उसको ऐसे लिखने से मिनिमम 9 टाइम्स तो लिखना ही लिखना है। 9 ग्रेटिट्यूड तो यूं खत्म हो जाता है। अपने अभी अगर हम अभी अभी क्या भी बोलने लगेंगे तो मेरी आंखों को धन्यवाद, आपसे बात कर रहे हैं धन्यवाद, इंटरनेट को धन्यवाद, तो ऐसे 3 तो यही हो गया। अभी तब तो शुरू ही किया था कि 3 खत्म हो गए उसमें से। तो तुरंत के तुरंत एवरी डे मेक इट अ पॉइंट की ब्लेसिंग्स लिखना ही है, ग्रेटफुल होना ही है, मिरेकल्स देखना है तो। और इसमें सबसे बड़ा मिरेकल तो यही दिखेगा कि अभी तो 2 दिन पहले मेरी मम्मी का शेयरिंग था कि किस तरह से रिटायरमेंट के 18 साल बाद, ये बहुत सारी शेयरिंग्स आ रहे हैं हमारे पास में ना, रिटायरमेंट के 18 ईयर्स बाद में एक अच्छी शिक्षिका का उनको जो मिलना, अवार्ड मिलना, ये ग्रेट, मतलब ये मैजिक नहीं तो क्या है, ये मिरेकल नहीं तो क्या है। हुआ कैसे? क्योंकि वो मॉर्निंग में 3:30 को उठी हैं और लिखी हैं। तो स्टार्टिंग में देखो ये पॉसिबल नहीं होता है कि सुबह 3 बजे उठा, 4 बजे उठा, लिखा। हम भी जब क्लासेस ज्वाइन किए थे ना, तो उसमें हमें बोला जाता था, सब बोलते थे, हमारे मेंटर सारे बोलते थे, हम तो 4 बजे उठते ही आंख खोलते ही बैठ के लिख लेते। हम तो उस जोन में आने में मुझे समय लग गया। मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं?
कहा नहीं, फीलिंग्स आर इम्पोर्टेंट। मैंने अपने सोच लिया और राजन सर का बहुत सारा वीडियोस भी देखा, फीलिंग्स आर इम्पोर्टेंट, फीलिंग इज द फ्यूल, फीलिंग इज फ्यूल। हम बोले सही में मेरा फीलिंग्स ही फ्यूल है। तो मुझे जब समय मिलता था तब मैं लिखती थी बैठ कर। मैंने कहा कि मैं दिन भर लिखती रहती हूँ, मेरा सारा समय तो ग्रेटिट्यूड में ही चला जाता है, मैं बाकी का काम कब करूंगी। ये भी मेरे दिमाग में आया, ये क्वेश्चन भी मेरे दिमाग में आया, लेकिन मैंने अपने आप को इतना लगाया, उसमें इतना लगाया कि एक एक दिन में 3-3 4-4 सेशन अटेंड करते थे, लेते नहीं थे, अटेंड करते थे। तो कहीं पर किसी मैजिक बुक में पहला चैप्टर हो रहा है तो दूसरे मैजिक बुक सेशन में 5वां चैप्टर हो रहा है, उसका लिख लिए। किसी मैजिक बुक चैप्टर उसी दिन कहीं और हो रहा है, शाम को हो रहा है, तो एक मधु 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 ना क्या नाम था, वो अग्रवाल थी, क्या नाम है आगे का पता नहीं मुझे, ऋचा उनका शाम अग्रवाल। को 7 बजे से होता था, उनका अटेंड किया। वो मंडे टू फ्राइडे होता था, सैटरडे संडे छुट्टी होती थी उनकी। उनका अटेंड किया तो उनका 15 चैप्टर चल रहा था उस वक्त। मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ, 15 चैप्टर कर लेती हूँ। इस तरह से दिन में 3 4 5 भी कर देते। तो मेरे घर वाले बोलते भी थे कि जब देखो तब कॉपी पेन उठा के लिखती रहती है, मतलब जब देखो लिखती रहती। थोड़ा सा रेस्ट दिया करो दिमाग को, नहीं तो दिमाग में ना वही सब चलेगा, दिमाग में वही सब चलेगा, थोड़ा रेस्ट दिया करो। फिर हमको लगता था कि सही में ये जो बोल रहे हैं ये भी सही है, क्या हमको सुनना चाहिए? लेकिन नहीं, मैंने अपने दिल की सुनी, मुझे लगा कि नहीं, इसमें ही मेरा मन लग रहा है, यही मजेदार है। और क्यों? अपना दिमाग शांत होता है और उसके बाद धीरे धीरे तो बस हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होने लगती है। वाह। लेकिन सबसे पहले मेरा मन शांत होता है, मेरा दिमाग शांत होता है। हम प्रॉब्लम्स पे ज्यादा ना फोकस करके हम सॉल्यूशंस पे फोकस करने लगते हैं। उतार चढ़ाव आज भी होता है, कल भी होता है, सब दिन होता है, लेकिन यस, हम सॉल्यूशन निकालने लगते हैं वहां पर। उसके बाद क्या होता है? फिर तो मैजिक होने लगता है। और ऐसा मैजिक होता है, ऐसा मैजिक होता है कि हम लोग मतलब शेयरिंग अगर कोई बोला तो मेरे पास बहुत सारे शेयरिंग है। मतलब वो दिन दिन निकल जाएगा, पूरा 24 घंटे में पूरा सुबह से लेकर रात तक बैठे तो मैं शेयरिंग कर सकती हूँ, आई इतने नो मैम, शेयरिंग यू आर शेयरिंग क्वीन। सही में मैं हर दिन सारिका सारिका के साथ में मैं करती थी, तो एवरी डे आई हैड माई शेयरिंग। और आपके अभी पास भी जब कोई भंडार है। इंपॉर्टेंट शेयरिंग उनके क्लास में होता है तो मुझे प्राइवेट मैसेज करती है कि अंशु प्लीज आना, आइएगा, आज ये शेयरिंग करनी है। बिलीव मी, चेकबुक था, मैजिक चेक का था, तो उन्होंने कहा कि मैजिक चेक का आज है, लिखो आप सब कोई, छोटे अमाउंट से शुरू करना और लिखना। अब हम तो हम ही हैं, हमने शुरू किया, मैं लिख दी उसमें, कितना लिखी थी मैं, 1 लाख कुछ ऐसा डालने के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि मेरा ही सबसे बड़ा है, सबके तो 5,000 2,000 लिखे, मैं 1 लाख लिखी हूँ, 1 लाख। मैम आपके यहाँ ज्यादा बारिश हो रही लगता मैं है डाल तो। रही हूँ मेरा। एंड देन यस, द वेरी नेक्स्ट डे आई शेयर्ड, तो बोली कि काम मेरा अच्छी तरह से। सो एक बुक है, एटलीस्ट वो तो शुरू कर ही दो लिखना। और लेकिन जो पुराने प्रैक्टिशनर्स है उसके लिए तो फिर क्या होता है ना कि जब हम शुरू प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए, एनी टाइम आई यूज्ड टू राइट, लेकिन धीरे धीरे अपने प्रैक्टिसेस को, जैसे अश्विन मैम कहती कि आज अगर आपने 7 बजे उठ रहे हैं तो 1 वीक के बाद में आप अपने आप को सोचो कि अलार्म लगाओ, सोचो आप 6:30 बजे उठ रहे हैं, मेक योर माइंड। तो वो हम 6 बजे को साढ़े मतलब 7 बजे को 6:30 बजे किया, वैसे 15 दिन चला। उसके बाद 6:30 से 6 बजे आए, वैसे 15 दिन चला। और वैसे होते 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 अभी अभी तो खैर हम तो उठते 4 बजे ही है, प्रेयर वेयर किया, ये सब किया, इधर उधर करने के बाद में लगता है ग्रेटिट्यूड लिखेंगे लिखेंगे, हाँ लिखेंगे लिखेंगे, और वो थोड़ा डिले होता था। और अब वाकई में जैसे मेंटर्स कह रहे हैं, तो 3:30 पौने 4 में नींद टूट जाती है और 4 बजे डॉट एवरीथिंग इज प्रैक्टिस। तो आप अपना लिस्ट बना ले, लिस्ट बनाना है, मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू आर ग्रेटफुल फॉर, राइट मिनिमम 9 ब्लेसिंग्स टुडे। मेरा परिवार सुख शांति से है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। मेरे बच्चे आज जहाँ ये एक्सेल कर रहे हैं बहुत अच्छे से, ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है।
आज सुबह उठ के हम आंख खोले हैं, सांस ले रहे हैं, ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। सब कुछ जो हम, मेरे दिमाग में एक सोच विचार आया वो काम हो गया, वो सबसे ब्लेसिंग है। एवरीथिंग इज ब्लेसिंग। सबसे बड़ा ब्लेसिंग है जैसे कि देखो दो कपल साथ में बैठ के सुन रहे, वो भी एक ब्लेसिंग है। इसके लिए भी धन्यवाद। आप लोग इंस्पिरेशन हो कि हमें करना है क्लास, ऐसे ही करना है, सब कोई ऐसे कपल बैठना है। So these are all like सही में ब्लेसिंग्स अगर हम काउंट करने जाएंगे तो कहते हैं मैजिक बुक में ये भी लिखा है कि इतने ब्लेसिंग्स आप लिखते चलो कि आपका काउंटिंग ही भूल जाए। ये जितना करो उतना कम है, ब्लेसिंग्स ग्रेटिट्यूड जितना लिखो उतना कम है, इतना लिखो कि काउंटिंग ही भूल जाए इंसान। क्या हुआ ना, एक बार हम रायगढ़ में थे, छत्तीसगढ़ रायगढ़, वहां एक जन के यहाँ बुलाए, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, उसके बाद में बोले कि चलो हम लोग को 108 बार राम राम करना है। ठीक है चलो, सब बैठे। अब 108 बार राम राम करे तो राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4 बजाए जा ताली, राम राम 1, राम राम 2। तो क्या हुआ कि ये राम राम पर मेरा ध्यान हट गया, वहां में 1 2 3 4। तो वहां में जब काउंटिंग जब गड़बड़ाई तो मुझे लगा अरे यार ये तो काउंटिंग ही गड़बड़ा दिया, चलो फिर से। तो फिर चलो हम आगे एक बार और राम राम कर लेंगे। तो ये क्या हुआ कि ये काउंटिंग पे ध्यान चला गया, राम राम पे ध्यान खत्म हो गया मेरा। तो जब मैजिक बुक में आया और जब ये लाइन लिखा हुआ था कि इतने ब्लेसिंग्स लिखो कि अपना काउंटिंग ही भूल जाओ, तो लगा कि सही में यार काउंटिंग क्यों करना। पहले तो हम जब लिखते थे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरा काम खत्म, मेरा एक्सरसाइज खत्म, मेरा होमवर्क खत्म। और उसके बाद मैंने सोचा कि दिस इज चीटिंग। थोड़े दिन बाद लगा मुझे दिस इज चीटिंग, ऐसे नहीं करना चाहिए, नंबर नहीं लिखते हैं। उसके बाद फिर के नंबर लिखना छोड़ दिए, भी दिमाग काउंट करने लगा, कैलकुलेट करने लगा कितना ब्लेसिंग लिख रहे हैं। और अब जब पेन उठाते हैं तो अपने आप को टाइम देखना पड़ता है कि अरे नहीं नहीं अब तो आप बंद करो, बहुत टाइम हो गया है, अब फिर एक और सेशन में बैठेंगे, फिर एक राउंड लिख लेंगे। अभी तो उठ के ये काम करना है मुझे, अब तो उठना है, उठ करके ये काम करना है, क्योंकि किचन में जाना है, ये वो बहुत सारा काम रहता है मॉर्निंग उठते साथ ही, है ना। सो इन दिस वे वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग व्हाट वी आर हैविंग। हमारे पास जो कुछ भी है वही हमारा ब्लेसिंग है। एक अच्छा फैमिली है, अच्छे हेल्दी हैं, पैसा बहुत है हमारे पास, पैसे की तो बारिश हो रही है। राजेंद्र सर का पेटेंट डायलॉग है, पैसे की तो बारिश हो रही है, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ। ऑब्वियसली मैं तो भगवान का बच्चा हूँ। अफर्मेशंस जरूर करिए, ग्रेटिट्यूड के साथ में अफर्मेशंस 4 चांद लगाता है। धरती का एक ही चांद है, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिसके बहुत सारे मून्स है। तो एफर्मेशंस इसको एड ऑन करता है, तड़का लगाता है एफर्मेशन। जो हम ग्रेटिट्यूड करते हैं उसके ऊपर में बहुत उसको सजावट का काम एफर्मेशंस करता है। एंड यस, एफर्मेशंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट। मैम आज हम लोग एक ही कार्ड करें क्योंकि हाँ, टाइम। आज एक ही कार्ड लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही वास्ट है और हम लोग इसको इतने फास्ट हम लोग जा नहीं सकते हैं इसमें, है ना। क्योंकि अभी भी बहुत लोगों का रहता है कि हम लिखते हैं। अच्छा, दूसरी बात है, आप 10 ही ग्रेटिट्यूड लिखो लेकिन फीलिंग के साथ लिखो। व्हाई? बिकॉज जैसे हमेशा राजन सर रिपीट करते रहते हैं कि यूनिवर्स को फीलिंग्स, वो वाइब्रेशंस ही समझ में आती है, उसको कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, कोई वर्ड्स। उसको जो हमारा जो फीलिंग है वही समझता है यूनिवर्स। तो कितने कोई कहते हैं ना कि 2 घंटे हम लिखते हैं, हम 10 पेज लिखते हैं, हम 25 पेज लिखते हैं, 50 पेज लिखते हैं। पेज भर जाने से कुछ नहीं होगा, हैंड राइटिंग सुधर जाएगा और कुछ नहीं होगा उसके अलावा। जो भी लिख रहे हो फीलिंग के साथ में लिखो। 10 ही ग्रेटिट्यूड लिखो, 9 ग्रेटिट्यूड लिखो, लेकिन दिल से लिखो, फील से लिखो, तो वो काम तुरंत होने का है। अब खाना ही बनाते हैं ना, तो हम बुलाते हैं बहुत सारा, कोई आता है मेहमान तो 10-15 प्रकार का डिश बनाते हैं। तो उसमें से सारा में कुछ 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 हो जाता है, कोई एक आध बहुत टेस्टी बनता, तो होता है कि अरे ये वाकई में इतने सारे में ये बड़ा मस्त था। क्या शायद हमने एक्स्ट्रा फीलिंग लगा दिया उसमें। कभी कभी सिंपल दाल चावल बनता है और कहता है वाह क्या टेस्टी दाल चावल बना है, तो उसका फीलिंग ही अलग है।
तो बस कहते हैं ना, घर का दाल चावल गर्मा गर्म खा लिया। जब बहुत टूर करके, लंबी यात्रा करके टूर करके आओ, तो हम कहते हैं कि यार रसम चावल खा लो तो बड़ा मस्त एकदम प्रसन्न हो जाएगा। घर का दही चावल ही खा लो तो बड़ा अच्छा लगेगा। उस दिन चावल भी बड़ा टेस्टी लगता है घर का। दैट्स द फीलिंग। उसी तरह से यूनिवर्स भी सिर्फ फीलिंग समझता है। तो आप 9 ग्रैटिट्यूड लिखिए। इसमें तो राजन सर एक और ग्रैटिट्यूड कम ही कर दिए हैं। उन्होंने कहा 9 ही लिखो, लेकिन फीलिंग के साथ लिखो, वॉट एवर यू हैव। अब एक और क्वेश्चन भी आता है कि हर दिन ग्रैटिट्यूड एक ही रहेगा कि हम बदल सकते हैं? तो मेरा मानना है, ऐसे बहुत लोगों का भी है, मेंटर्स का भी मैंने सुना है, कि कुछ 4 या 5 ग्रैटिट्यूड मेरे फिक्स होते हैं। यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड फिक्स है, 5 एलिमेंट्स का ग्रैटिट्यूड फिक्स है, मेरे पेरेंट्स का ग्रैटिट्यूड फिक्स है, मेरे फैमिली का फिक्स है, मेरे मेरे भाई बहनों का फिक्स है, इतना मेरे रिलेटिव्स का, डिस्ट्रिक्ट का, कस्टमर्स का फिक्स है। उसके अलावा जो जो होता जाता है मैं लिखते जाती हूँ। इतना तो मेरा डेली का है, इन सब के लिए मैं डेली ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ। और यस ऑफ कोर्स अपने लिए अफर्मेशंस जरूर लिखती हूँ, अपने लिए अफर्मेशंस जरूर लिखती हूँ। तो यस, अगर ऐसा यहाँ से, आज से यहाँ से शुरू किया जाए। अब कहने लगे कि हम तो टूर पे थे तो हम नहीं लिख पाए। बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन आता था, टूर पे है तो नहीं लिख पाए, गड़बड़ हो गया, टाइम टेबल गड़बड़ हो गया। टूर पे थे तो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, खाली ग्रेटिट्यूड लिखने में गड़बड़ हो गया। तो एक ने कहा कि हमारे कैसे लेके जाएंगे जर्नल। अरे जर्नल का तरीका, एक जर्नल है तो एक छोटा सा पॉकेट डायरी होता है ना, पॉकेट डिक्शनरी, पॉकेट डायरी टाइप का, उसको रख लिया बैग में। बैग में इतने सारे सामान हम लेके जाते हैं, बदल बदल के सब कुछ हम लेके जाते, कपड़े ढेर सारे लेके जाते हैं, तो एक कपड़ा कम कर दिया, एक ग्रेटिट्यूड कॉपी डाल लिया उसमें। जहां चाह वहां राह। हम अगर चाहेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमने चाहा तो हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, हमने चाहा तो हम चंद्रयान 3 भेज करके साउथ पोल, मून के साउथ पोल में भी हम लैंड कर गए। वहां लैंड करवाए ही नहीं, वहां पर जो चंद्रयान उतरा उसको हॉप करवा रहे हैं अभी, यहाँ से कंट्रोल करके, वो मतलब कि स्लाइड भी करके वो हॉप कर रहा है वहां पर। जब मर्जी होती है यहाँ से ऑन करते हैं उसको, वहां वहां हॉप करवा रहे हैं, और फिर उसके बाद हॉप करना मतलब कुदा रहे हैं उसको एक तरह से। और अपने हाथ में रिमोट है, कहाँ धरती, चांद, कहाँ साउथ पोल का। हम कर सकते हैं तो ग्रैटिट्यूड क्यों नहीं लिख सकते हैं? एक कॉपी छोटा सा नहीं कर सकते अपने साथ में? वी कैन डू इट। और हर एक सक्सेसफुल इंसान की अगर आप म्यूट हो गए मैम। मोबाइल से लेने से यही दिक्कत जाता है, फोन आने से कट जाता है। तो यूट्यूब में देखो या छोटे छोटे रील्स में भी आते हैं, उनके छोटे छोटे इंटरव्यूज का। हर एक सक्सेसफुल इंसान, हर एक सक्सेसफुल इंसान यही कहता है कि आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर माय पेरेंट्स, आई एम ग्रेटफुल। हम हमेशा थैंक यू बोलते हैं, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। कहीं ना कहीं वो दे आर डाउन टू अर्थ, दे आर इन ग्रेटिट्यूड। तो ये एकदम कंपलसरी है कि लिखना तो है, मैजिक देखना है और मजे लेने हैं, लाइफ में मजे लेने हैं, तो ग्रेटिट्यूड तो लिखना पड़ेगा ही, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। मैम अभी कुछ शेयरिंग ले लें, हम किसी तो का सोच लेते हैं हम तो ये करेंगे। हाँ चलिए अभी शेयरिंग लेते हैं, एक्चुअली हम लोग का प्रेयर भी है, हाँ। बिकॉज दिस इज ग्रेटिट्यूड। ये लेट्स सी, है ना, किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कुछ है शेयरिंग? एनी क्वेश्चन और शेयरिंग? एक का हैंड रेज था, बहुत हाँ, देर से रखी थी। ये रितु जैन का पहले था। क्या था ये? चिराग जानी, अनम्यूट कीजिए आप। रेणु, हाँ चिराग जानी जी का है। चिराग जानी जी आप अपने आप को प्रणाम अनम्यूट प्रणाम करिए। मैडम, प्रणाम। कल ग्रेटिट्यूड डे था तो आपको प्रणाम सर। प्रणाम ग्रेटिट्यूड डे का। थैंक यू सो मच। अभी एक वीक से मैंने एक टेक्निक सोची है एज ए वैदिक के हिसाब से, और जहां पढ़ा लिखा हूं मैंने उस टेक्निक का नाम दिया है एम्प्टी माइंड राजन सर टेक्निक। वाह। तो इसमें अगर आप कहते हो तो मैं थोड़ा
हाँ अगर आप please. इजाजत बताइए। देते हो तो मैं टेक्निक थोड़ी इसका अल्गोरिदम और उसका फ्लो चार्ट में बना के दे दूंगा, पर आप अगर इजाजत देते हो तो। इजाजत वाली बात यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना, हम थोड़ा सुनना तो जरूर चाहेंगे क्या है, लेकिन बहुत सारे नए लोग हैं यहाँ पे, कहीं वो मतलब उसमें वो टेक्निक्स में ना चले जाए। पहले ग्रेटिट्यूड लिखना सीखे, उसके बाद वो टेक्निक्स करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत जन बोलते हैं 369 क्या है, तो वो जस्ट ये मेरा मानना है, हम उसके लिए हम ये नहीं करेंगे। एंड आई थिंक कि राजन सर जब क्लास में रहेंगे उस वक्त आप ये एम्प्टी माइंड एंड राजन सर को जो आपने लिंक किया है, तो उस वक्त बहुत अच्छा लगेगा, सब कुछ सुनना पसंद करेंगे, उसमें सर भी कुछ बताएंगे। ठीक है, है शुक्रिया। ना? तो डोंट टेक इट बाकी अदरवाइज, बहुत अच्छा क्योंकि है, हाँ आपने आज बहुत अच्छा क्लियरिटी बहुत अच्छी तो दी। मैडम आज थैंक यू आपने जी, क्लियरिटी ग्रेटिट्यूड की बहुत अच्छी दी। सच अ थैंक यू थिंग, सर। यू आर वंडरफुल वॉइस, वंडरफुल। आपकी जो समझाने का तरीका है, इट इज अ वेरी वंडरफुल। मुझे लगा कि मैंने रोना बन के थैंक वो यू सर। साक्षात पाया। हे भगवान, नहीं नहीं, हमारा उतना बड़ा दर्जा मत दे दीजिए, अभी तो राशि नाम हमारी नोटा बन है। हम लोग तो उन्हीं को देख के फॉलो करते हैं, है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। तो आप बुरा बिल्कुल मत माने, क्योंकि यहाँ नहीं में नहीं नहीं पता नहीं। चला कि बहुत सारे नए लोग हैं जिन्होंने मैजिक बुक किया नहीं है, वो ज्वाइन किए हैं। तो उन सबके लिए ऐसा है कि ये स्टार्टिंग है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, ग्रेटिट्यूड लिखने लगेंगे तो वी कैन थिंक ऑफ टेक्निक्स। क्या पक्का। होता है ना कि इसमें आते ही पहले जो लगता है ना कि हम जब इस क्लास में ज्वाइन करते तो ऐसा कुछ हो जाए मेरे साथ कि मेरा सारा कुछ गायब हो जाए, छू मंतर। अरे हम मैजिशियन नहीं है, हम यहाँ प्रैक्टिस करने आए हैं, यहाँ पर हम मैजिशियन नहीं है। प्रैक्टिस करते 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 हम अपने आप को चेंज करेंगे और हमको लगेगा सब कुछ बदल गया है। नहीं जैसे लगता ठीक है है, ना कि मुझे यहाँ मैं टाइम आए और मिलेगा, ये कुछ मैं मेरे उसका को, लिटरेचर बना दूंगा। हाँ जरूर जरूर ठीक ठीक है ठीक। जरूर। तो अमर, अभी जैसे 369 वाली टेक्निक है, आप तो पहले ब्लेसिंग्स क्या है, ग्रेटिट्यूड क्या है लिखो, तब तो आपको पता चलेगा, क्लैरिटी मिलेगा कि व्हाट यू वांट एंड व्हाई यू वांट। व्हाट यू वांट हमको पता नहीं, क्लैरिटी नहीं है, व्हाई यू वांट वो भी क्लैरिटी नहीं है, हमको 369 टेक्निक लिखना है। टेक्निक इज देयर आर मेनी टेक्निक्स, और चिराग जानी जी इतना बढ़िया 48 टेक्निक्स के साथ उन्होंने ई बुक निकाला है, ब्यूटीफुल टेक्निक्स। लेकिन सबसे बड़ा टेक्निक है ब्लेसिंग काउंट करो और ग्रेटिट्यूड लिखो। काउंट योर ब्लेसिंग्स एवरी डे, यू हैव टू। जिस तरह से हम पानी पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वैसे ही ब्लेसिंग्स काउंट करना और ग्रेटिट्यूड लिखना उतना ही जरूरी है हमारे लिए, है ना? हाँ, प्रतिमा सेठी जी। अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को, हाँ अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। मैं पूछ रही थी, जैसे मैंने ये ग्रैटिट्यूड बुक में लिखना शुरू किया है, तो इसमें अपने हर लाइन में यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड लिखना होता है, या एक बार लिखकर और फिर आप सिर्फ आई एम थैंकफुल और वैसे लिखकर भी कर सकते हैं? और जैसे 100 ग्रैटिट्यूड्स लिखने हैं तो थैंक यू फॉर द एसी, थैंक यू फॉर माय कार, मतलब इस तरह से लिखते हैं क्या? क्योंकि मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि 100 लिखते हैं तो हर बार यूनिवर्स को थैंक यू करते रहते हैं क्या, कि आई एम सो थैंकफुल नहीं, एंड हाँ, ग्रेटफुल टू द एक बार तो यूनिवर्स? जैसे लिखते हैं, हाँ एक बार जैसे जब ग्रेटिट्यूड, एक सेकेंड, अनम्यूट कीजिए मैम अपने आप को। हाँ हाँ। सो इसमें क्या है ना, जब हम ग्रेटिट्यूड, जब हम जैसे लिखते हैं, आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल एंड हैप्पी टू द यूनिवर्स बिकॉज, उसमें बिकॉज आना बहुत जरूरी है। हाँ क्यों हम ग्रेटफुल है, किसी के लिए भी हम ग्रेटफुल क्यों हैं? आई एम ग्रेटफुल एंड हैप्पी टू द यूनिवर्स बिकॉज, मुझे जो जो है सब कुछ जो हम लिख रहे हैं सब ग्रेटफुल है कि बिकॉज आई एम गेटिंग गुड एनर्जी, आई एम गेटिंग ये, आई एम गेटिंग दिस, आई एम हैप्पी, ये जो जो मिल रहा है मुझे, जो मेरा ब्लेसिंग है सारा कुछ, है ना? आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हाउस बिकॉज आई एम स्टेइंग हियर वेरी नाइसली, सेफली, है ना? ये सब कुछ है इस तरह से। अपने बॉडी एक बार लिखिए और उसके बाद देखिए, एवरीथिंग इज योर फीलिंग एंड योर लैंग्वेज, दैट्स इट। कोई ओके कैसे लिख रहा है, यहाँ में कोई ये मतलब ये कोई लैंग्वेज का क्लास नहीं है, ये कोई क्या कहते हैं कि कोई एग्जाम नहीं है कि अगर आप इसको ऐसे यहाँ से इसको वैसे लिख दिए तो गड़बड़ हो गई, कुछ नहीं है ऐसा।
आपको जो फीलिंग आ रहा है, जिस लैंग्वेज में फीलिंग आ रही है, उस लैंग्वेज में लिखो। जो मन में आ रहा है वो लिखते चलो। लेकिन हाँ, धन्यवाद देना बहुत जरूरी है, धन्यवाद बोलना जरूरी है, धन्यवाद लिखना जरूरी है, और सच में दिल से फीलिंग आना जरूरी है। वो आप जैसे भी लिखो, कॉपी पेन उठा के लिखना चालू करो। यस यस मैम, एक शेयरिंग भी है मैम। हाँ बोलिए। हाँ, मेरी डॉटर अभी 12th में थी, तो मैंने उसके लिए पहले तो DU के लिए ट्राई किया, तो उसके लिए मुझे अपने आप से उसकी कोचिंग का एक मिला कोचिंग सेंटर। और कोचिंग सेंटर में ये था मैम कि ठीक है, मुझे इतना फीस पे करना है, हम प्रिपेयर्ड थे। उनका उस टाइम ग्रैटिट्यूड और अरविंद सर की क्लास चल रही थी, सब चल रहा था। और उस टाइम ये हुआ कि आगे से सर ने पूछा कि अच्छा उनका क्या परसेंटेज है, क्या है। बोले अच्छा ये परसेंटेज है तो हम उनको 80% हम उनको स्कॉलरशिप देंगे। तो कहा, मैंने सोचा था उसका 40,000 1 मंथ का फीस पे करूंगी, और वो 40% 8,000 7,000 में उसका फीस से उसका कोचिंग हो गया। मतलब अपने आप आगे से आने लग गई चीजें कि मुझे अपने आप से डिस्काउंट मिलने लग गया, स्कॉलरशिप मिलने लगी। और जैसे मैंने उसके कॉलेज के लिए सोचा था कि बैंगलोर हो जाए या DU हो जाए, 2 चीज सोच रखा था। और क्राइस्ट में मानिए मैम कि उसका फर्स्ट एग्जाम में, जिसमें वो बहुत डर भी रही थी कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैंने खूब ग्रेटिट्यूड लिखी उसके लिए कि उसका क्राइस्ट में हो रहा है। फर्स्ट इंटरव्यू में उसका कॉल आ गया, उसका एडमिशन हो गया। और पता चला उसके फ्रेंड्स और सब भी जो थे ना मैम, वो 3-3 4-4 बार एग्जाम दे चुके हैं और उन लोग का हो रहा है, हो रहा है। तो ये सब ऐसे लगा ग्रैटिट्यूड करने से, लिखने से, जो जो चीज सोची थी वो वैसी उसके लिए पूरी होती रही। और हमारा मन था DU भेजने का, उसका था क्राइस्ट जाने का। और अब वो क्राइस्ट चली गई और वहां पर इतनी खुश है और इतने अच्छे से वहां पर उसका कॉलेज चल रहा है। तो क्या होता है ना इसमें, जब अश्विन मैम जो बता रही थी, यही बताती है कि एक का मन रहता है कि मेरे बेटे की शादी करनी है, और बेटे का मन, माँ का मन रहता है बेटा का शादी करना है, बेटा का मन रहता है कि मुझे अभी थोड़ा सा सेटल करना है। तो आप जब चाहते हैं कि वो काम 100% हो, तो बच्चे को बैठा लो, खुद भी बैठ जाओ। बच्चा, तेरा मन क्या है, तुमको क्या करने का मन है? अच्छा, मुझे ये करने का मन है। तो उसके मन के हिसाब से अपने को भी लेकर के, क्योंकि पढ़ना उसको है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने जब बताया मेरी बेटी का है कि वैसे उसको लंदन जाना था, पढ़ना था, उसका थोड़ा सा तबीयत खराब थी, मुझे मन नहीं था कि उसको भेजे, लेकिन उसको जाना ही है, जिद है, मुझे जाना है तो जाना है, भले जैसे भी जाना है। उस वक्त हमने क्या किया कि उसी की जिद को लेकर के ग्रेटिट्यूड, मेरी बेटी। मजे की बात बताऊं इसमें, मैं मेरा एक शेयरिंग आप लोग सुनो आज। क्या है कि जब वो उसको जाना था, हम लोन अप्लाई किए। हमारे घर में किसी को अब आज तक पढ़ाई के लिए किसी ने लोन लेके नहीं पढ़ा है। इनफैक्ट मेरे बेटा भी जब US गया तो मेरे देवर बोले कि भाभी जी, कौन आजकल लोन लेके अब तक बच्चे घर में पढ़ाई किए हैं। एंड ही स्पॉन्सर्ड, वो स्पॉन्सर किया। आफ्टर ऑल वो तो वो चुका दिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट देन स्पॉन्सर्ड, ही स्पॉन्सर्ड कि मैं ये कर रहा हूँ, वो लोन लेके नहीं पढ़ेगा, उसकी पढ़ाई हो गई। अब इसके समय में तो मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा होना चाहिए। अब कितना अच्छा नहीं लगता है बार बार ऐसे, एक संकोच भी आया कि नहीं बाहर हमेशा। तो बेटा भी US में है, देवर भी US में है, मेरी बहन भी US में है, बहुत हमारे आधा परिवार वहीं पर है। तो लेकिन क्यों चिंता कर रही है? फिर भी हम सोचे कि नहीं। जब हमने बैंक में अप्लाई किया, HDFC बैंक या HDFC बैंक से था, तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी क्या पढ़ने जा रही है, तो ह्यूमैनिटीज, वहां पर वो जेंडर स्टडीज के लिए करने जा रही है। वो नहीं मैडम, ऐसा है ना कि हम लोग तो अगर कोई MBA के लिए जाता है या इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल के लिए जाता है तो हम लोन देते हैं, हम तो ह्यूमैनिटीज के लिए और ऐसे कोई अदर आर्ट्स वाले सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम लोग लोन नहीं देते हैं। मैंने कहा ये क्या बात हो गई भाई, लोन ही नहीं दोगे? फिर भी हम बहुत ये किए, तो फिर फाइनली उन लोग मान गए। कैसे कैसे मान गए उन लोग, पर मैं लिखती थी कि उन्होंने दिया, लोन दिया, मान गए। उसके बाद ये मैजिक चेक आया। जब मैजिक चेक भरा मैंने, तो अगले दिन जो मेरी बहन ही लोन का पास कर रही थी, बात करवा रही थी अपने फ्रेंड से, तो कहती है कि दीदी लोन लेना इतना जरूरी है क्या? अरे मेरे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, तो उससे पहले फीस दो ना, उसको भेजो ना, बाद में देखेंगे। तो इसका तो कुछ हुआ नहीं। देवर भी वहां से भिजवा दिए, यहाँ से मेरा बेटा भी सब करा दिया, 1 साल की पढ़ाई हो गई। जो लंदन में मेरा भाई है, वो कहता है कि तुमको चिंता किस बात की थी दीदी, मैं तो हूँ यहाँ पर। और वो फटाफट पहले वही
फीस पे करता था और उसका काम होता था। इस तरह से मेरी बेटी की पढ़ाई हो गई, हमारे जेब से 1 रुपया नहीं लगा, सब उसकी पढ़ाई हो गई। कैसे हुआ? ओनली ग्रेटिट्यूड। मैं सिर्फ कॉपी में भर भर के लिखी हूँ। क्या लिखी हूँ? कि वो अच्छा से पढ़ाई करे, वो बहुत अच्छे से है, उसकी तबीयत बहुत अच्छी है, वो बहुत बढ़िया से, मतलब वहां में अपना पूरा मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। एंड यस, दिस हैपेंस, दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये होता है। हम सोचते कैसे होगा, हमने कैसे होगा, फीस कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, उस पर हम नहीं गए थे। हम क्या, मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, दैट्स इट। क्या चाहिए, क्यों चाहिए, क्या चाहिए मेरी बेटी। देखो, जो जिस फील्ड में परफेक्ट हमको लगता है कि ये काम वो कर सकता है, हमको उसको प्रोत्साहन देना है। मुझे मालूम है कि शी विल एक्सेल इन वॉट एवर सब्जेक्ट शी गोज, शी विल एक्सेल। उसको सोसाइटी के लिए काम करना है, शी हैज टू वर्क फॉर द सोसाइटी, टू ब्रिंग सम चेंजेस, शी कैन डू इट। मेरा मन था कि वो कुछ सोसाइटी के लिए काम करे, कुछ हमारे सोशल इसके लिए काम करे, एंड शी हैज टू डू इट। मेरे बहुत चैलेंजेस थे, ऐसे नहीं कि कोई चैलेंज नहीं आए, बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन भी हुआ। व्हाई, हाउ? बिकॉज ऑफ राइटिंग प्रैक्टिसेस। तो राइटिंग ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, और किसी का कुछ? मैं तो अपना ही बोलने लग मैडम, जाती हूँ। मैडम आप ही ने लिखा कि आपकी बेटी ने भी लिखा था? मैं लिखी थी। मेरी बेटी उस वक्त तो दिमाग में उसका एक ही धुन सवार था, मुझे लंदन जाना, मुझे लंदन जाना, मुझे लंदन जाना, मम्मी मेरे लिए लिख दो। उस वक्त मैं जब ग्रेटिट्यूड क्लासेस करती थी तो घर में बगल में बैठी रहती थी, लेकिन कभी भी वो सेशन अटेंड नहीं करती थी। मैं उसको डेली रात को मैं एक चैप्टर पढ़ के सुनाती थी कि तू सुन, सुन के सो जा। अरे मम्मी यार नींद आ रही है। नहीं, नींद आ रही है तो भी सुन के सोना है तुमको। तो मैम, अभी 2-3 दिन होते होते फिर बोली हाँ ठीक है सुना लो, अच्छा ठीक है सुना लो, ठीक है सुना। मेरी भी मैम 2 डॉटर्स वहाँ बैंगलोर में हैं। हमने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। रोज मैं उनको एक अफर्मेशन कार्ड का फोटो भेजती हूँ और उस पे लिखती हूँ कि आज अपना अपना फेवरेट जो अफर्मेशन, आज हमको डोमिनेंट थॉट बनाना है, तो हम तीनों उसमें अपना अपना डोमिनेंट थॉट लिखते हैं। और फिर उसको ये है कि अपने को दिन भर उसको चैंटिंग करना है, वो मूड में रहना है। तो एक आध बार मैं भूल गई दोपहर तक भेजना, फिर मेरी डॉटर का मैसेज आया, मम्मी आज का अफर्मेशन कार्ड कहाँ पर है, आज का अफर्मेशन कार्ड भेजो कि हमको आज क्या चैंट करना है, वाओ, हम क्या सोचे आज हम। तो अब ये कि प्रैक्टिस हो गई है कि रोज एक एक भेजती हूँ उनको। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो ये जब मेरे साथ में थी, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में गई लड़की। इतने बार में मैं कितना सारा, मैं कितने बार मैं खत्म कर चुकी हूँ, क्योंकि एक एक दिन में बोला ना 4-4 बुक चैप्टर्स चलता था, 4-4 जगह चलता था, तो कितना मेरा हो गया। सुनती थी लेकिन कभी नहीं लिखती थी। और जब लंदन गई दिसंबर में, बोली मम्मी क्या बात करेंगे रोज रोज हम लोग इतना देर, एक काम करते हैं ना, तुम मेरा एक 1-on-1 सेशन ले लो। एंड देन वी स्टार्टेड 1-on-1 सेशन उसके साथ। एंड मैम अभी मम्मी मैजिक हो गया। उसके बाद में लिखना है, अफर्मेशंस लिखना है, उसको ग्रेटिट्यूड लिखना है, थैंक यू लिखना है। मम्मी मैजिक हो गया, मम्मी मैजिक हो गया। अंशु जी, अनलेस एंड अंटिल वी राइट। हाँ जी, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा, एक टाइम हो गया है, थोड़ा प्रेयर ले लें फिर एंड करें सेशन। हाँ हाँ हाँ। और किसी का कुछ? अभी 53 हुआ है। हमारे पास में और 2 मिनट है शेयरिंग के लिए। बहुत है, बहुत 8 मिनट है ताराचंद जी। 8 मिनट में तो 2 शेयरिंग और प्रेयर भी हो जाएगा। किसी किसी ने का हैंड, है और पूछना है राजेश जी आपको कुछ ब्लेसिंग्स शेयर के करना है? ग्रेटिट्यूड के बारे में? हाँ जी, राजेश जी हैं बॉम्बे से, कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए राजेश जी। चाय में टुकड़ा ये लो। मेरे ख्याल से बहुत तिरुपति चल रहे हैं उधर। भगवान इनको खर्चा पानी खाना खाते वो आवाज क्लियर नहीं है। नहीं, वो वहां पर बहुत सारे लोग हैं, वो उसकी वजह से शायद। अभी है ना, मैं कसम देना बोला ना, मैं इसके लिए जानबूझ के उधर ही उतारता हूँ, पर लोग देखते ही नहीं लोग। राजेश आवाज नहीं है, क्लियर नहीं है। नहीं, वहां पर फंक्शन चल रहा है कुछ, शायद इसीलिए बैकग्राउंड में ओके, आवाज। आप अनम्यूट हो गए हैं। चलिए नहीं, कोई वो नहीं। मैंने अनम्यूट किया उनको।
अच्छा बाप रे। नहीं चलिए कोई नहीं, आप अनम्यूट कर लीजिए, क्या हम जी? लोग कल बात करते हैं फिर, है ना। चलिए, इट्स ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लेकिन आप पार्टी एंजॉय करिए। अश्विन मैम कहती हैं अभी का अभी जो सिचुएशन है उसको एंजॉय कर डालो। अभी यहाँ में अरे पार्टी में है तो मेरा ग्रेटिट्यूड छूटा जा रहा है, नहीं पार्टी एंजॉय कर लो। अगर ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं तो वो छूटा जा रहा है, नहीं अभी ग्रेटिट्यूड एंजॉय कर लो। जो मोमेंट में है नाउ, यू हैव टू लिव इन दिस नाउ पोजिशन, ये नाउ को जी लो, तो आने वाला जो फ्यूचर है ना वो तो वाव हो जाएगा। फिर इस नाउ को जियोगे तो वाव हो जाएगा, है ना। एंजॉय एंजॉय योर पार्टी। अच्छा गणपति है, ओके ओके, चलिए चलिए हम लोग प्रेयर ले लेते हैं और उसके बाद में 10 बजे वी विल एंड द सेशन। तो आज प्रेयर कौन करवाने जा रहा है? राजन सर बोले थे कि हर दिन आप लोग 2-3 जने तैयार रहिए प्रेयर को लेके, वरना हम तो करवा ही लेंगे प्रेयर। यस, किसी ने हैंड रेस किया है। हाँ देखिए कौन है, देखो तो मेरे मोबाइल में नहीं दिख रहा, सपना देखना कौन है। जी अनम्यूट कीजिए, हाँ जी अनम्यूट कीजिए, वो नहीं कर पा रहे। दक्षिता आप अपने आप को दक्षिता unmute जी हैं, दक्षिता जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हो गया। दक्षिता, अच्छा मैं नारायण प्रेयर कराना चाहूंगी, धन्यवाद की, अगर आपकी चलिए, इजाजत हो तो। हाँ हाँ ओके, 3-4 मिनट की करवाइए, थोड़ी शॉर्ट में 2 मिनट की है, 2 टाइम। मिनट की, जी जी 2 मिनट की। हाँ जी हाँ जी। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ है, इसीलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन। प्यार, आदर, सम्मान, मैजिक, मिरेकल्स, जैकपॉट, सेहत, स्फूर्ति, स्टेमिना, उन्नति, प्रगति, सफलता, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर से लबालब भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। हे नारायण, आपकी कृपा से हम भाग्यशाली है, हम कृपाशाली है, हम शक्तिशाली है। हे नारायण, आपकी असीम कृपा से हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आपकी कृपा से हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है। हे नारायण, आपकी कृपा से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, और जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हे नारायण, आपकी कृपा से हमारे संपर्क में आने वाला हर एक व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह, यातायात, ब्रह्मांड, सृष्टि, पूरी कायनात, जन्म कुंडली, समय, मौसम, वातावरण, धन, पैसा, सब कुछ हमारे अनुकूल है, अनुकूल है, अनुकूल है। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमें आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान मिला है, इसीलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। हे नारायण, आपकी कृपा से हमारे जीवन में सातों सुख है। हे नारायण, आपकी कृपा से हम सप्त सितारा जीवन जी रहे हैं, हम खुश व संतुष्ट है, हम वाणी, वर्तन, व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। हे नारायण, आपकी कृपा से हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। हे नारायण, आपकी कृपा से और आपके आशीर्वाद से हमारे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, सफलता, यूनिटी, एकता, सामंजस्य, सुसंवादिता और लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर की दिव्य ऊर्जाओं से हमारा परिवार
लबालब भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है और पूरी तरह से सुरक्षित है, सुरक्षित है। हो नारायण, आपकी कृपा से हमारा ये गोल्डन पीरियड चल रहा है और आपके सानिध्य में ये सप्त सितारा से भरा हुआ गोल्डन पीरियड आजीवन चलता रहेगा, ऐसा हमारा प्रबल विश्वास है। नारायण, आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आप सबका भी धन्यवाद है मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू। Wonderful. Thank you so much. Wonderful. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अंशु जी यहीं पे एंड करें मीटिंग को। थैंक यू अंशु जी, थैंक यू जी, ताराचंद जी, थैंक यू, थैंक यू मैम। सुधा जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अंशु जी, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद। ओके, अब हम एंड कर रहे हैं ना? ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू अंशु। Thank you, Anshu. थैंक यू, थैंक all यू, of you. Thank you. थैंक यू सो मच अंशु। Thank you, Anshu ji. जी अपना बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। थैंक यू। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।